اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. آدھا اس پر عمل کرنا آدھا اس پر عمل کرنا نہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کا گھر ہے یہ، تمہارے باپ کا گھر نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی عمل ہو. میں کسی ہنومان چالیسے کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے، واللہ اعلم. اگر ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جہاں من کرے وہاں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں پڑھیں. ہم خلل اندازی کبھی نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا یا کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی پیدا کریں، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے. معزز سامعین اکرام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نام سے پکارو، سارے نام تو اللہ ہی کا ہے، وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. قرآن پاک میں یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور آگے کا ترجمہ سنیے، اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا، ان کے راستے پہ نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو اپنے عقیدے سے ہی پیار کرنا چاہیے اور دوسروں کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے اور بت پرستی سے نفرت کرنا ہے. جو لوگ یہ کہتا ہے کہ بت پرستی بھائی چارہ کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ اس آیت کا کیا جواب دیں گے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ان سب سوالوں سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں. مفتی سلمان اجہری صاحب سے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے بارے میں مفتی سلمان اجہری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نکال لیں. اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، یہ ٹھیک یہی اصل کافر ہے. آیت کا لب لباب میں بتا دوں، خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 لوگوں کی مذمت فرمائی. اس میں سے ایک آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرے عزیزو یہ دن ہے. ایک طرف کفر ہے، کروڑوں خدا ہے، یہ بھی خدا یہ بھی خدا یہ بھی خدا. یہ رات ہے. مجھے بتاؤ یہ 2 اپوزٹ چیزیں مل سکتی ہیں؟ کبھی نہیں. ایک کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ایک کہہ رہا ہے ہر ایک خدا ہے. اپوزٹ چیزیں ہو گئی. ایمان اور کفر مل سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں. اللہ اللہ، انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں. یہ لوگ کون ہیں؟ وہ بعض اسلام کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعض کفر کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں. ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے. دونوں کو ملا کر کے تم مکسچر ایک راستہ بنانا چاہتے ہو. یہ کون لوگ ہیں مولا؟ رب تعالیٰ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں تو بڑے کافر یہ ہیں اللہ اللہ، جو باؤنڈری کو پاٹ رہے ہیں، بیچ کی باؤنڈری کو ہٹا رہے ہیں. یہ حقیقت میں بڑے کافر ہیں. اللہ فرماتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. رب تعالیٰ فرماتا ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے. میرے عزیزو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی سے بھی ملنے کی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں؟
आप मिले, सारे लोगों से मिले, जरूर। दुनिया में जितने रिलीजियंस हैं सबसे मिले आप, यहूदी, ईसाई, हिंदू, जो कुछ भी है सबसे मिले, अखलाक तुम अपने दिखाओ उनको। बात सही। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो ये है कि अपने अखलाक के साथ दोस्ती रखी जा सकती है, लेकिन हर अकीदे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बेशक। हर एक चीज को हम अपने रंग को ऐसा ना बदलें जिसको मुहावरे में कहा गया, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है वो सोचता है हंस की तरह मैं भी चल करके देखूं, बाद में होता क्या है, वो प्रैक्टिस करते करते वो हंस की तरह भी नहीं चल पा रहा है और असली कौवा भी नहीं रहा, बीच का हो गया, उसको अपनी चाल ही खत्म, भूल गया। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं नहीं हम सेकुलर हैं, हम बीच वाले हैं, हम पूरे मुसलमान भी नहीं बनना चाहते, हम पूरे वो भी नहीं, वो दरमियान में आकर के उनको बाद में ये भी भूल जाते हैं कि हम थे क्या असल। वही कौवे हैं जो अपनी चाल भूल गए। इसीलिए कहा गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया वैसे ही रहो, वैसे ही रहो। यही कुरान कहता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकालें। मियां काहे का बीच का रास्ता? क्या इस्लाम में कोई चीज कमी रह गई तुम्हें? नहीं। जो अकबर बादशाह निकालने की कोशिश किया था, दोनों को मैच करके मिला करके हम एक नया दीन तैयार करेंगे, नया मजहब तैयार करें, ये भी हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए, दोनों को मिला करके। अकबर ने जो दीन नया शुरू किया था, अकबर बादशाह, वो मुर्तद होकर के मर गया बेचारा, वो वजीरों की सुन सुन करके मैच करके दोनों को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया और वो बीच का बन करके रह गया। मेरे अजीजों, ये बात याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया है उसी फितरत में कामिल बन करके रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारी इज्जत है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, पूरे के पूरे दाखिल हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा इस्लाम में ये वाजिब नहीं है और मैं छोड़ देता हूं, नहीं खाता हूं, तो यहूदी मजहब पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। मिक्स कर रहे हैं। शनिचर के दिन गोश्त खाना इस्लाम में वाजिब थोड़ी ना है, वाजिब नहीं है, नहीं खाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर नहीं खाऊंगा शनिचर के दिन तो दोनों मजहब पर अमल हो जाएगा, यहूदी मजहब पर भी कि उनके मजहब में शनिचर के दिन गोश्त खाना हराम है, उस पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ, आ जाओ। आधा उस पर अमल करना, आधा इस पर अमल करना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश ना करें। एनिमल लवर्स आप हैं अगर, रहो, लेकिन बनने की कोशिश मत करना, वैसा ही मत बनो। प्यार करना अलग चीज है, पूरा बन जाना अलग चीज है, तुम बन नहीं सकते। इसी तरह इस्लाम दिन है, कुफ्र रात है, दोनों के बीच में अगर तुम निकालने की रास्ता सोचोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा कि तुम पूरे ना इस्लाम में रह पाओगे ना पूरे कुफार में रह पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम जैसी अजीम दौलत से तुम्हें सरफराज किया है, तो इसी में पूरे के पूरे बाकी रहो, इसी में पूरे के पूरे रहो। अच्छा, दूसरे मज़ाहिब की भी मैं बात करूं, दूसरे रिलीजन में अगर कोई पंडित है, अगर वो अपने धर्म में पूरा पक्का है तो उनके धर्म में उसको अच्छा समझा जाता है कि डावाडोल आदमी नहीं है, पूरा ठीक है, पूरे इसको ग्रंथ याद हैं, वेद याद हैं, जो कुछ भी उनकी मुकद्दस किताबें सब बराबर करता है। लेकिन उनमें से अगर वो कोई ऐसा शख्स जो इधर भी उधर भी हाथ पैर मारता रहता है तो वहां पर भी वो जलील हो जाता है। ये सब का मामला है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दायरा इस्लाम में रखा है तो इसकी कदर करो। अल्लाह का घर है ये, तुम्हारे बाप का घर नहीं, रब तबारक व तआला का घर है, उसके कानून के मुताबिक ही अमल हो। मैं
किसी हनुमान चालीसे के मुतालिक ये नहीं कह रहा कि वो क्या है, वल्लाहु आलम। अगर हिंदू उसको मुकद्दस समझते हैं और पढ़ते हैं तो जहां मन करे वहां पढ़े, वहाँ पर हो, अपनी इबादत गाहों में पढ़े। हम खलल अंदाजी कभी नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे। और अपनी नेतागिरी बचाने के लिए जगह जगह पूजा पाठ करना तुम्हारे लिए शरीयत का हुक्म नहीं है। नहीं है बेशक। हाँ, आप अगर यहां हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके पड़ोसी हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, तो हमारे लिए इजाजत है कि उनके दिल रखने के लिए आप उनसे दोस्ती रख सकते हैं। पड़ोसी के हुकूक में यहां तक है, इस्लाम ने बताया अगर वो गमगीन है तो उसके गम को दूर करने की कोशिश करो, अगर उसके घर में किसी चीज की कमी है तो पूरी करो, अगर उनमें किसी का इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो तुम उसके यहां ताजियत के लिए जा सकते हो, अगर से दूर खड़े रहो। पड़ोसियों के हुकूक में हमें इस्लाम ने ये इजाजत दी है। लेकिन मेरे अजीजों, जहां तक इस्लाम ने इजाजत दी है उतना करते रहो। मैंने फिर वही मिसाल याद दिलाई, अगर किसी से मोहब्बत है तो मोहब्बत रखो, पूरा वो बनने की कोशिश मत करो, दरमियानी रास्ते में जाने की कोशिश ना करो। तुम अपने इस्लाम के साथ कायम रहो, तुम्हारी आइडेंटिटी इसी में है, तुम्हारी आइडेंटिटी इसी में है। अभी जैसे एक मसला छिड़ा है उत्तर प्रदेश में, किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा कराने की बात की गई और एक किसी इमाम साहब ने बुला करके उसमें हनुमान चालीसा पढ़ाया। अल्लाह और अल्लाह। उसको क्या कहा जा रहा है, सद्भावना है, सब आपस में मोहब्बत के लिए है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, सद्भावना एक तरफ से होनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं, मस्जिद नहीं, में कोई हनुमान चालीसा कर रहा है हाँ, तो क्या कोई पंडित इजाजत देगा कि राम मंदिर जो बना रहे वहां हम भी पहली अजान दे दें, अजान दे दे। कुरान की तिलावत करें? क्या ये सद्भावना की फिक्र हर एक को है? नहीं है तो छोड़ो, हम दावत कहां दे रहे हैं आपको। आप अपनी मंदिर में पूजा करो, सारे हवन करो, सारी चीजें तुम्हारे मुकद्दसात जितने उस पर अमल करते रहो, अमल करते रहो। हमें हमारी मस्जिदों में जो हमारे मुकद्दसात हैं इस पर अमल करने की इजाजत है। न छेड़ो, न किसी के अंदर दखल अंदाजी करो। इस्लाम में ये तमाम चीजें नहीं है। अब ये जो दरमियानी लोग हैं, नहीं तुम्हारे लिए मस्जिद के दरवाजे खुले, तुम आओ, तुम्हारे पाठ पढ़ो, मैं उन लोगों से कहता हूं, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म अल्लाह ने दिया है? तुमको किसने कहा है? अल्लाह का घर है ये, तुम्हारे बाप का घर नहीं। रब तबारक व तआला का घर है, उसके कानून के मुताबिक ही अमल हो। मैं किसी हनुमान चालीसे के मुतालिक ये नहीं कह रहा कि वो क्या है, वल्लाहु आलम। अगर हिंदू उसको मुकद्दस समझते हैं और पढ़ते हैं तो जहां मन करे वहां पढ़े, वहाँ पर हो, अपनी इबादत गाहों में पढ़े। हम खलल अंदाजी कभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम कहता है जो जिस दीन से वाबस्ता है उसको रहने दो। कुरान पाक में ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती हम पकड़ के लाएंगे भी नहीं आपको। जी जी, आपकी अपनी मर्जी, ये हर इंसान की अपनी मर्जी से वो अपना दीन और अपना मजहब इख्तियार करता है। बेशक। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो तीसरे आदमी बन जाते हैं। बीच के आदमी ना बनो, अच्छे लोग नहीं होते बीच के। जी। यानी बाज जगह बीच में होना अच्छा है, बाज जगह बीच में होना बहुत बुरा समझा जाता है, नुकसानदेह है। इस तरह से इस्लाम में हो तो पूरे इस्लाम में रहो। अगर कोई ईसाई है तो अपनी पूरी ईसाइयत को फॉलो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं। कोई हिंदू है तो अपनी हिंदुइज्म को पूरा फॉलो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते। कुरान ने यही कहा, यही ठीक ठीक काफिर है, यही लोग काफिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे दरमियानी लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुव्वत ईमान को रासिक कर दे कि हम ईमान पर ही जमे रहें और ईमान पर ही हमारी मौत आए। अल्लाह ताला ने हमें जिस मजहब मुकद्दस पर जिंदगी दिया है, ऐ करीम खुदा इसी मजहब मुकद्दस पर हमारी आखिरी सांस अता फरमा।